بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور آپ کو بتائیں لہو وطن کے شہیدوں کا رنگ لایا ہے، اچھل رہا ہے زمانے میں نام آزادی۔ 23 مارچ عہد وفا کی تجدید کا دن، یوم پاکستان کے موقع پر 21 توپوں کی سلامی سے دن کا آغاز۔ صوبائی دارالحکومت کی محفوظ شہید گیریسن میں 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ پاک فوج کے چاق و چوبند دستے نے توپوں کی سلامی دی، فضا اللہ اکبر اور پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونجتی رہی۔ ملک کی سلامتی اور سربلندی کے لیے دعائیں بھی مانگی گئیں۔ یوم پاکستان کے موقع پر صدر مملکت، وزیر اعظم، وزیر خارجہ، وزیر داخلہ سمیت سیاسی و عسکری قیادت کی مبارکباد۔ ہمت و جرت کی لازوال داستان 23 مارچ یوم پاکستان، صوبائی دارالحکومت کے محفوظ شہید گیریزن میں یوم پاکستان کی پروقار تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا۔ پاک فوج کے چاق و چوبند دستے نے دن کا آغاز 21 توپوں کی سلامی سے کیا۔ تقریب نعرہ تکبیر، اللہ اکبر اور پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ تقریب کے اختتام پر ملک و قوم کی ترقی، سلامتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ کیمرہ مین ذیشان زاہد کے ساتھ شاہزیب شہزاد، لاہور نیوز۔ 23 مارچ کی صورت غلامی سے آزادی کی طرف سفر کے آغاز کا دن پھر آن پہنچا۔ حوصلوں، امنگوں، فخر و انبساط اور ہمت و جرت کی لازوال داستان کا امین، ایک ایسا دن جس نے برصغیر کے مستقبل کا منظرنامہ طے کر دیا۔ یوم پاکستان پر ماضی کے دریچوں سے جھانکتی ہوئی لاہور سے سہیل کیسر کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ آئیے ہم آپ کو کچھ دہائیاں پیچھے لے چلتے ہیں۔ یہ 23 مارچ 1940 کا تاریخ ساز دن ہے۔ مقام ہے لاہور کا منٹو پارک، جہاں مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس جاری ہے۔ اجلاس سے قائد اعظم محمد علی جناح خطاب فرما رہے ہیں۔ قائد اعظم کے اس کلیدی خطاب نے اس اجلاس کا ایک واضح مقصد متعین کر دیا تھا: لے کے رہیں گے پاکستان، بٹ کے رہے گا ہندوستان۔ میں 7ویں جماعت دا سٹوڈنٹ سا، سانو اینا پتا نہیں ہوندا، لیکن اینا سی کہ جننے اودے اندر بندے سن سارے اپنی والوں اس کوشش ہی سن کہ وہ ایک بڑے وڈے مقصد لئی آئے۔ ایک قرارداد کی منظوری کی صورت میں مسلمانان برصغیر کے لیے ایک الگ وطن کے حصول کا فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ اسی میں مسلمانوں کے فکری اور مذہبی نظام کی بقا پنہاں تھی۔ پھر جب فیصلہ ہو گیا تو صرف 7 برسوں کے مختصر عرصے میں حصول پاکستان کا خواب حقیقت بن گیا۔ پورے جلسہ نے پاس کیتا ریزولیشن کہ جتھے مسلمان زیادہ نے اتھے مسلمانوں کی حکومت، جتھے ہندوؤں کی، ہندو زیادہ نے اتھے ہندوؤں کی حکومت۔ اسی کٹھے ہندے ساڈا وہ حال ہونا سی جو آج ہندوستان دے مسلمان دا حال ہے۔ پاکستان تو وجود میں آ گیا تھا، لیکن چیلنجز بہت بڑے تھے۔ اقتصادی اور انتظامی طور پر بہت کچھ کرنا باقی تھا تاکہ ایک نوزائیدہ مملکت کے وجود کو دوام بخشا جا سکے۔ جوش اور جذبہ جوان تھا، سو ہمارے اسلاف اس معرکے میں بھی پورے اترے۔ ہمیں انہی کو فالو کرنا پڑے گا جو کہ اسلاف پاکستان تھے، اسلاف تحریک پاکستان تھے، تاکہ ہمارے اندر وہ عزم اور جذبہ قائم ہو اور پاکستان کی آزادی بھی قائم و دائم رہے، اور ہم اب اس طرح سے ترقی کریں جس کا خواب قائد اعظم نے اور ہمارے اسلاف نے دیکھا تھا۔ بلا شبہ اب یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کے لیے بہتر پاکستان چھوڑ کر جائیں۔ بے شک سفر ابھی جاری ہے، منزل بھی دور ہے، لیکن بہت جلد انشاءاللہ ہم اپنے باقی ماندہ خوابوں کی تعبیر بھی ضرور پائیں گے۔ لیکن اس کے لیے شرط صرف ایک ہے کہ اپنے ملک کی ترقی کے لیے ہم سب یکجان ہو جائیں۔ کیمرامین محمد سلمان کے ساتھ سہیل کیسر، لاہور نیوز۔ صدر مملکت، وزیر اعظم، گورنر پنجاب اور نگراں وزیر اعلیٰ کی یوم پاکستان پر قوم کو مبارکباد۔ پاکستان کو مضبوط، خوشحال اور ناقابل تسخیر بنانے کے عزم کا اظہار کیا۔ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی نے یوم پاکستان پر قوم کو مبارکباد دیتے ہوئے بانی پاکستان اور تحریک پاکستان کے دیگر رہنماؤں کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ صدر مملکت نے کہا کہ بھارت میں اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں پر ظلم ثبوت ہے کہ مسلم قیادت نے علیحدہ وطن کا ایک دانشمندانہ فیصلہ کیا۔ چیلنجز کے باوجود ہم نے مسلسل محنت اور قابلیت سے ہر شعبے میں شاندار کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اپنے پیغام میں کہنا تھا کہ ہمیں قانون کی حکمرانی یقینی بنانے اور جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے کام کرنا ہوگا۔ اتحاد، ایمان اور نظم و ضبط کے ساتھ ہم پاکستان کو مضبوط اور خوشحال بنا سکتے ہیں۔ گورنر پنجاب علیق الرحمان نے یوم پاکستان پر خصوصی پیغام میں کہا کہ قائد اعظم اور علامہ اقبال کے فرمودات کی روشنی میں قومی مقاصد کے حصول کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے۔ آج پاکستان سے غیر متزلزل محبت اور وفا کرنے کے عہد کی تجدید کا دن ہے۔
वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने भी यौम पाकिस्तान पर कौम को मुबारकबाद दी है। मोहसिन नकवी ने कहा कि ये दिन एक अलहदा वतन के हुसूल के लिए तारीखी जदोजहद, बेपनाह कुर्बानियों और पुख्ता अज़्म की याद दिलाता है। अब आपको बताएं कि गवर्नर हाउस में 23 मार्च के हवाले से तकरीब तकसीम इनामात। गवर्नर पंजाब मलिक रहमान ने कौमी क्रिकेटर टीम के कप्तान बाबर आजम को सितारा इम्तियाज़ से नवाजा। बाबर आजम सितारा इम्तियाज़ वसूल करने वाले सबसे कम उम्र क्रिकेटर हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। जनाब मोहम्मद बाबर आजम। एजाज़ सितारा इम्तियाज़ शोबा खेल क्रिकेट। जनाब बाबर आजम ने 31 मई 2015 को एक बैन अल-अक़वामी क्रिकेट डेब्यू किया। अप्रैल 2021 में जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ पहले वनडे में खेलते हुए आपने अपनी 76वीं इनिंग में 13वीं सेंचुरी स्कोर की, जिससे वो संगे मिल हासिल करने वाले तेज़ तरीन खिलाड़ी बन गए। सीरीज़ के इख्तिताम पर आप विराट कोहली के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए 865 पॉइंट्स के साथ नंबर 1 बैट्समैन बन गए, जिसके बाद 1258 दिनों तक आप एक रोज़ा बैन अल-अक़वामी रैंकिंग में अव्वल नंबर बैट्समैन रहे। 14 अप्रैल 2021 को सेंचुरियन स्टेडियम में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ आपने पहली T20 सेंचुरी बनाई और मैच जीता। 25 अप्रैल 2021 को जिम्बाब्वे के खिलाफ तीसरे T20 में आपने 2000 रन बनाने वाले तेज़ तरीन बैट्समैन बन गए। आपने अपने करियर में कई अवार्ड हासिल किए, जैसे कि ICC मेंस ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021, ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अप्रैल 2021 वगैरह। बैन अल-अक़वामी क्रिकेट के आप भी 20 T20 वनडे इंटरनेशनल और टेस्ट क्रिकेट में मुनफरिद मुकाम रखते हैं। खेल क्रिकेट के शोबे में आपकी गरां कदर खिदमात के इतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जनाब बाबर आजम को सितारा इम्तियाज़ का एजाज़ अता किया है। यौम पाकिस्तान पर पंजाब सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के ज़ेर एहतमाम पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया है। तफसीलात के मुताबिक तकरीब का आगाज़ परचम कुशाई से किया गया और इसके बाद कौमी तराना भी पढ़ा गया है। तकरीब में CBD पंजाब के CEO ब्रिगेडियर रिटायर्ड मंसूर जंजुआ, डायरेक्टोरेट सरबराहान और CBD पंजाब के स्टाफ मेंबरान ने शिरकत की है। तकरीब से खिताब करते हुए CBD पंजाब के CEO ब्रिगेडियर रिटायर्ड मंसूर जंजुआ ने कहा कि आज का दिन हमारी मुल्की तारीख का एक अहम दिन है। एक अथॉरिटी के तौर पर CBD का सूबे और पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार है। हम सूबे पंजाब के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को फ़रोग़ देकर मुल्क की मजमूई तरक्की में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। आपको अहम खबर से आगाह करें कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का हफ्ता की रात को मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में जलसे का ऐलान। जलसे से 24 घंटे पहले PTI को स्टेज के लिए सामान लाने की इजाज़त होगी। क्रेन, साउंड सिस्टम, कंटेनर्स भी कल पार्क में लाने की इजाज़त होगी। यौम पाकिस्तान की वजह से आज जलसे के इंतजामात की इजाज़त नहीं दी गई। मज़ीद तफसीलात बताएंगे ज़ैनुल आबिदीन। जी ज़ैन, बताएगा। ये ग्रेटर इकबाल पार्क में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से एक बड़े जलसे का ऐलान किया गया है। ताहम जलसे के इंतजामात के लिए मीनार पाकिस्तान ग्रेटर इकबाल पार्क का कंट्रोल PTI इंतजामिया को कल दिया जाएगा। जलसे से 24 घंटे पहले PTI को स्टेज के लिए सामान इस पार्क में दाखिल करने की इजाज़त होगी। कल रात तक PTI को मीनार पाकिस्तान पर जलसे के इंतजामात के हवाले से जो सामान है वो लाने से रोक दिया गया है। ज़राए की जानिब से ये बताया गया है कि यौम पाकिस्तान 23 मार्च के मौका पर मीनार पाकिस्तान और ग्रेटर इकबाल पार्क में अवाम का रश होता है, तो इस रश की वजह से आज जो सामान है उसको लाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। इसके अलावा PHA इंतजामिया ने PTI इंतजामिया को आज सामान लाने से रोक दिया है। क्रेन, साउंड सिस्टम, कंटेनर भी कल बरोज़ जुम्मा पार्क पे लाने की इजाज़त होगी। बहुत शुक्रिया ज़ैनुल आबिदीन इस तफसील का। अब आपको बताएं कि रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ के साथ ही मुनाफाखोर माफिया सरगर्म हो गया है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट गायब, फलों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। फल गरीब आवाम की पहुंच से दूर हो गया है। मज़ीद क्या सूरत हाल है ये जान लेते हैं मुबीन हैदर से। जी मुबीन। बिल्कुल इसी तरह से है कि हम मुगलपुरा की फ्रूट मंडी में खड़े हैं और यहाँ पर जो तमाम फल हैं उनकी कीमतें आसमान से बातें करती दिखाई देती हैं।
सरकारी रेट लिस्ट के अंदर भी इजाफा किया, लेकिन उसके बावजूद भी सरकारी रेट लिस्ट से तकरीबन बहुत ज़्यादा मार्जिन के ऊपर जो है चीज़ें बेची जा रही हैं। मिसाल के तौर पर केला जो है सरकारी रेट में लिस्ट में दर्जा अव्वल जो 180 है, लेकिन जब यहाँ पर 300 रुपये तक केला फ़रोख्त किया जा रहा है। उसके बाद सेब की बात करें तो सरकारी रेट लिस्ट में तकरीबन 350 है, लेकिन यहाँ पर 350 से 450 जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। अगर खरबूजे की बात करें, खरबूजा भी इसी तरह से सरकारी रेट लिस्ट के अंदर जो है वो 165 है, लेकिन यहाँ पर जो खरबूजे की कीमत है वो तकरीबन 200 से 250 रुपये जो है किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। तमाम जो फल हैं महंगे दामों बेचे जा रहे हैं। अगर हम बात करते चले फल फरोशों की, तो वो कहते हैं कि चीज़ों की कीमतों में इजाफा हो चुका है, पेट्रोल महंगा है, मार्केटिंग में शिपिंग है महंगी पड़ती है, तो फ्रूट इनको पीछे से भी महंगा पड़ता है, तो महंगा बेचना पड़ता है। जबकि अगर बात की जाए ग्राहकों की, तो वो लोग कहते हैं कि रमज़ान आ चुका है, बाकी खर्चे भी मैनेज करने होते हैं, खराजात मैनेज करने होते हैं, बड़ा मुश्किल हो चुका है क्योंकि हर फल की कीमत हमें डबल नज़र आती है। और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स जो हैं यहाँ पर बिल्कुल हमें गायब नज़र आते हैं। मार्केट्स के अंदर से, फूड मार्केट्स के अंदर से, सब्ज़ी मंडियों में कोई चेक एंड बैलेंस नज़र नहीं आता हुकूमत की जानिब से, किसी और जानिब की तरफ से, जो कि यहाँ पे आके रेट लिस्ट चेक करें या प्राइस लिस्ट चेक करें कि किन कीमतों पे जो है फल बेचे जा रहे हैं। क्योंकि मनमाने नरखों के ऊपर जो तमाम जो है फल फरोश जो है फल बेच रहे हैं, क्योंकि हर एक ने अपनी मर्ज़ी के जो रेट लगाए हुए हैं उस हिसाब से जो है यहाँ पे फल बेचे जा रहे हैं। सरकारी रेट लिस्ट को बिल्कुल नज़रअंदाज किया जा चुका है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट से हमें गायब नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर हुकूमती अमला भी गायब नज़र आता है। हमें किसी किस्म का कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है और लोग मनमाने नरखों पर जो है यहाँ पर चीज़ें फ़रोख्त कर रहे हैं। अच्छा मुबीन, ये बताइएगा कि आज जैसे कि पहला रोज़ा है, अभी बाकी भी रमज़ान पूरा पड़ा हुआ है, तो आज पहले दिन जो है वो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट गायब है, तो इंतज़ामिया ने इस पर क्या अभी तक कार्रवाई की है इनके खिलाफ? नहीं, फिलहाल इंतज़ामिया ने ऐसा कोई कार्रवाई नहीं की इनके खिलाफ, क्योंकि पहला रोज़ा रमज़ान का आगाज़ था, तो तवक्को की जा रही थी कि बड़ा स्ट्रिक्ट चेक एंड बैलेंस रखा जाएगा ताकि तमाम पूरे जो महीने में है लोगों को अच्छे दामों पे जो है चीज़ें मिल सके। लेकिन फिर भी है हमें हुकूमत बिल्कुल नाला नज़र आती है। यहाँ पर किसी किस्म की यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं, किसी किस्म का कोई प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट यहाँ पर नहीं, और किसी किस्म की हमें कोई हिकमत अमली नज़र नहीं आती जिससे जो है कीमतें हैं जिनको कंट्रोल किया जा सके। जी बहुत शुक्रिया मुबीन हैदर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। रमज़ान मुबारक के आगाज़ के साथ ही मुनाफा और माफिया जो है वो सरगर्म हो गया है। कभी प्याज, कभी टमाटर, कभी मौसमी सब्जियां महंगी। रहमतों के महीने में भी आवाम को महंगाई से छुटकारा नहीं मिल सका है। 11 सब्जियों, 5 फलों और अंडों के दाम बढ़ा दिए गए हैं। महंगाई ने पंजे गाड़ लिए। माह सयाम में भी आवाम को रिलीफ न मिल सका। 11 सब्जियों और 5 फलों की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। टमाटर 10 रुपए महंगा होकर 110 रुपए किलो मुकर्रर, मार्केट में 140 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। लहसुन चाइना की कीमत में 5 रुपए का इजाफा 340 के बजाय 450 रुपए किलो में दस्तयाब है। सब्ज मिर्च 15 रुपए महंगी हुई, सरकारी कीमत 115 की बजाय 140 रुपए किलो बेची जा रही है। लीमू चाइना भी 15 रुपए महंगे होकर 190 रुपए किलो हो गए, मार्केट में 220 रुपए किलो में फरोख्त हो रहे हैं। मेथी 11 रुपए, भिंडी, शिमला मिर्च, गाजर देसी, टिंडे 10 रुपए, शलजम 7 रुपए और आलू 1 रुपया महंगा हुए। सरकारी रेट लिस्ट में 5 फल महंगे कर दिए गए। सेब काला कुल्लू 5 रुपए महंगे होकर 315 रुपए किलो मुकर्रर, मार्केट में 450 रुपए किलो फरोख्त हो रहे हैं। केले दर्जा अव्वल और दोइम 10 रुपए, मौसमी 5 रुपए फी दर्जन महंगी। अमरूद की कीमत में 10 रुपए का इजाफा 150 की बजाय 220 रुपए किलो बेचे जा रहे हैं। शहरी रमजान भी सस्ता अशिया न मिलने पर नाला है। कहते हैं हुकूमत क्या कर रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी फिलहाल रेट तो वही है, रेट कम नहीं हुए। अभी देखें आगे ये क्या करते हैं। प्याज परसों 100 रुपये था, आज 120 रुपये है। हर चीज़ महंगी हुई है, मतलब रेट डबल हो गए हैं। अमरूद पहले 100-150 था, अब 250 है। केला 150 था, ये तकरीबन 250 रुपया मिल रहा है। मुर्गी का गोश्त 5 रुपए सस्ता होकर 499 रुपए किलो हो गया। फार्मी अंडे मजीद 2 रुपए महंगे होकर 237 रुपए फी दर्जन हो गए। कैमरामैन मोहम्मद सलमान के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। अवाम को रिलीफ ना मिल सका, मुफ्त आटा पॉइंट्स पर रश लग गया। सिर्फ एक आटे के थैले के लिए शहरी घंटों ख़वार होने लगे। यौम पाकिस्तान की छुट्टी अवाम ने आटे के हसूल में ही गुजार दी। ये रिपोर्ट देखिए। मुफ्त आटा दस्तयाबी आसानी की बजाय अवाम के लिए इम्तिहान बन गई। लंबी कतारें, मुफ्त आटा किसी को मिला तो कोई मायूस ही लौट गया। आटे के लिए मखसूस पॉइंट्स पर सुबह से ही रश लग गया। पहले शनाख्ती कार्ड की तस्दीक का मैसेज, फिर घंटों लाइनों में लगकर इंतजार की ज़हमत। मर्द व ख़वातीन की बड़ी तादाद मुफ्त आटा पॉइंट्स पर ख्वार होने लगी। यौम पाकिस्तान की छुट्टी अवाम ने मुफ्त आटा पॉइंट्स पर आटे के हसूल में ही गुजार दी। महंगाई के मारे अवाम चकरा कर रह गए। हम जलील हो रहे हैं, ठीक है। हम हॉस्पिटल में हमारी वाइफ एडमिट है, ठीक है। वो उसका कार्ड लेके आए, उसके कार्ड पे भी नहीं हमें मिल रहा। अवाम को आटा नहीं मिल रहा है।
बच्चे भूख मार रहे हैं ये हुकूमत का क्या फ़ायदा हुआ? कहते थे जी हम वोट दो, हमें वोट दो। जब इलेक्शन होते हैं, वोट लेने होते हैं तो आ जाते हैं, जब आटा की बारी आती है तो हुकूमत आटा नहीं देती। मुस्तहकीन को एक माह में 10 किलो आटे के 3 थैले मिलेंगे। पहले थैले के बाद 1 हफ्ते बाद दूसरा थैला और फिर तीसरा थैला दिया जाएगा। शिनाख्ती कार्ड की तस्दीक लाजमी दे दी गई। रमज़ान के बाबरकत महीने में भी अवाम को शय खुरनोश की कीमतों में रिलीफ नहीं मिल सका। दालें, घी, चीनी, बेसन की खरीदारी अवाम के लिए चैलेंज बन गई है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखते हैं। इंतज़ामिया की गलत मनसूबाबंदी और अदम दिलचस्पी। रमज़ान के बाबरकत महीने में भी अवाम का इम्तिहान। अवाम को अशिया खुरनोश पर दी जाने वाली सब्सिडी से महरूम कर दिया गया। दालें, घी, चीनी, बेसन की खरीदारी अवाम के लिए चैलेंज बन गई। बाजार में दाल मूंग 280 रुपए, दाल माश 470 रुपए किलो फरोख्त, बेसन 280 रुपए, काले चने 280, चीनी 108 रुपए किलो में दस्तयाब। मौजूदा सूरत हाल से अवाम परेशान। कहते हैं हुकूमत ने रमजान का बाबरकत महीना भी अवाम के लिए मुश्किल बना दिया। आटे से लेकर दालें तक हर चीज अवाम की पहुँच से दूर है। दालें भी इसी तरह महंगी हो गई, मुर्गी भी देखें 550-600 रुपये बिक रही है, गरीब आदमी पिस के रह गया। दूसरे ममालिक में ये होता है कि वो तो कैंप लगा देते हैं कि आओ फ्री में खाना खाओ। यहाँ पे महंगाई हो जाती है। ना सिर्फ गवर्नमेंट अगर जैसे आटा बंट रहा है फ्री में तो अवाम का क्या हाल हो रहा है, तो उनकी बदहाली बता रही है कि वो मरने के लिए तैयार है आटे के लिए। दालें कोई चीज़ नहीं है, स्टोरां ते इन्ना को रश भी धक्के हैगे ने, जलील होने वाली गल है। तो उन्होंने बेहतर है भी ये थोड़ा किहड़ा 300 कर देंदा, 400 कर देंदा, वो ज़्यादा बेहतर सी। ओपन मार्केट में जहां दालें, घी आवाम की पहुंच से दूर हैं, वहीं 10 किलो आटे का थैला भी नापैद हो चुका है। रमज़ान मुबारक के आगाज़ पर भी महंगाई के वार जारी हैं। इफ्तार दस्तरखान का लाजमी जुज़ खजूरों की कीमतें बढ़ गई हैं। खजूरें 500 रुपये से 3200 रुपये किलो तक बिकने लगी हैं। ये रिपोर्ट देखिए। माह सयाम में भी महंगाई की दुहाई। इफ्तार दस्तरखान का लाजमी जुज़ खजूरों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। गुज़श्ता साल 200 रुपए में मिलने वाली खजूरें 500 रुपए फी किलो तक मिलने लगी। मार्केट में 12 इकसाम की खजूरें 500 से 3200 रुपए फी किलो तक बिकने लगी हैं। जैदी खजूर 500 रुपए, चॉकलेट 800, कलमी खजूर 900 रुपए फी किलो में फरोख्त। ईरानी खजूर 800, अजवा खजूर 2400, सऊदी कलमी खजूर 1800, सऊदी मबरून 2600 रुपए किलो मुकर्रर। सकरी 2400 रुपए, सक्कल खजूर 2800, मजदूर और अजवा ताविल 3200 रुपए किलो में फरोख्त। शहरी खजूरों की कीमतें बढ़ने पर परेशान। कहते हैं इफ्तार दस्तरखान का लाजमी जुज़ खजूर भी महंगी हो गई है। दीगर ममालिक में त्योहारों पर चीजें सस्ती और पाकिस्तान में महंगी हो जाती हैं। खजूर पहले पिछले रमज़ान में बहुत सस्ती थी, लेकिन अब गरीब के लिए मुश्किल हो गया है, तो क्या करें। अब हमने महंगी खरीदी है पिछले साल से, अब डबल रेट हो गया। कुछ बारिशें हो गई हैं, उनकी वजह से उन्होंने कस्टम बढ़ा दिया है। हुकूमत को चाहिए कि गरीब आदमी का ख्याल करे, उनके लिए कोई सहूलतें फराहम करे, हर चीज़ सस्ते बाजार अपनी तरफ से लगाए। शहरियों का कहना था कि हुकूमत को चाहिए कि रमज़ानुल मुबारक में अवाम को रिलीफ देने के लिए इकदाम किए जाएं। कमिश्नर का मॉडल बाजार और आटा फ्राहमी सेंटर जौहर टाउन, शेरशाह कॉलोनी, मोहनबाद और रायबिन का दौरा किया। क्या है मोहम्मद अली रंधावा ने अशिया खुरनोश की क्वालिटी और मुकर्ररा कीमतों पर फराहमी का जायजा लिया है। कमिश्नर लाहौर ने यूसी सेक्रेटरी मोहनबाद को गैर तसल्ली बख्श कारकर्दगी पर मुअत्तल कर दिया है। मोहम्मद अली रंधावा ने मियाँ प्लाजा जौहर टाउन फ्री आटा फ्राहमी पॉइंट पर आटा तकसीम का जायजा लिया है। इसी पर बात करेंगे इमरान अकबर से। जी इमरान, क्या तफसीलात है इस हवाले से? हाँ जी बिल्कुल, कमिश्नर लाहौर ने आज दौरे किए हैं और मियाँ प्लाजा मॉडल बाजार और इसके साथ साथ शेरशाह कॉलोनी, मोहनबाद, तहसील रायबंद के सेंटर्स का भी दौरा किया गया है। यूसी सेक्रेटरी मोहनबाद को गैर तसल्ली बख्श कारकर्दगी पर मुअत्तल कर दिया गया है। कमिश्नर लाहौर ने मॉडल बाजार में शेयर खुरनोश की क्वालिटी और नोटिफाइड रेट पर फराहमी का जायजा लिया, जिस पर मियाँ प्लाजा जौहर टाउन में फ्री आटा फराहमी पॉइंट्स पर आटा तकसीम का जायजा लिया गया। इस बारे से चिप या बार कोड के बगैर शनाख्ती कार्ड की स्कैनिंग के लिए सुपर लॉगिन तमाम सेंटर पर फाल है। कमिश्नर लाहौर का ये कहना है कि हर सेंटर पर दिए गए तमाम लॉगिन की चेक किया जा रहा है, जबकि टोकन व टैली शीट मुरतब की जाए, इस वाले से हदायत जारी कर दी गई है। इस वाले से ऐसे शहरी असल कार्ड के साथ आए, चिप व बगैर चिप के कार्ड का कोई मसला नहीं है और तमाम शहरियों को जो है आटा फराहम किया जाए। जी ठीक है इमरान, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब सेक्रेटरी सनत और तिजारत एहसान भुट्टा का हरबंस खुदरा और चाइना स्कीम के मॉडल बाजारों का दौरा। आटा सेल पॉइंट्स पर मुफ्त आटे की तकसीम के अमल का जायजा लिया। मॉडल बाजारों में सार्फिन से दस्तयाब सहूलियात और मसाइल के बारे में भी पूछा है।
मज़ीद तफसीलात बताएंगे शबीर हैदर। जी शबीर। जी, सेक्रेटरी सनत और तजारत एहसान भुट्टा ने हरबंसपुरा और चाइना स्कीम के मॉडल बाजारों का दौरा किया और मॉडल बाजारों में मुफ्त आटे की तकसीम के मौके पर मुफ्त आटे की तकसीम के अमल का जायजा लिया और उसके साथ साथ मॉडल बाजारों में सार्फिन के दस्तियाब सहूलियात और मसाइल के हवाले से भी पूछा। और इस मौके पर सेक्रेटरी सनत और तजारत ने मॉडल बाजार के सहूलत स्टॉल्स का भी जायजा लिया और सहूलत स्टॉल्स पर किराना की अशिया बाजार जो है अशिया उसमें बाजार से कम कीमत पर फरोख्त हो रही हैं। और दौरे के दौरान एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल पुलिस महकमा सेहत के अफसरान और मॉडल बाजार की इंतजामिया सुपरवाइजर और रेवेन्यू हुकाम भी मौजूद थे। और इसके साथ सेक्रेटरी ने मॉडल बाजार में CCTV कंट्रोल रूम, फायर फाइटिंग आलात, पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम और शिकायत सेल को भी चेक किया। और इसके साथ सेक्रेटरी सनत और तजारत एहसान भुट्टा ने कहा कि मॉडल बाजार बहुत शुक्रिया शबीर हैदर इस तफसील का। पहले रोज़े की इफ्तारी के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। शहरी समोसे, पकोड़े और कचौरियों की खरीदारी में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। शहर में समोसे पकोड़ों की दुकानों पर रश बढ़ गया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे फ़हद अमीन से। जी फ़हद, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? आज बिल्कुल माह मुबारक शुरू हो चुका है। आज पहला रोज़ा है और अब वक्त है रोज़े की अफ्तारी के लिए सामान खरीदने का। तो हर जो है वो रोज़ेदार की कोशिश यही होती है कि आज पहला रोज़ा जो है वो समोसे, कचौरी और इसी तरह की दीगर अशिया जिसमें पकोड़े भी शामिल हैं, ये चीज़ें खाकर जो है वो आज की अफ्तारी की जाए, दस्तरखान सजाए जाएं। तो सब की कोशिश यही होती है। तो तैयारियां जो हैं वो अभी से शुरू हो चुकी हैं। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि अभी से जो है वो समोसे और कचौरियां तैयार करके जो है वो दुकानदारों ने रख दी हैं और ख़रीदार भी जो हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, ख़रीदारी के लिए आ रहे हैं। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो इस तरफ भी जो है वो बड़ी तादाद में शहरी जो है वो ख़रीदारी में मसरूफ़ हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं क्या कहना है इनका। सर, जो ज़रूरत ज़िंदगी है वो खरीदने हैं। बच्चे काफ़ी एक्साइटेड हैं, बच्चे फरमाइशें कर रहे हैं कि ये खाना है, ये खाना है। माशाल्लाह बड़े बड़े का रोज़ा है तो बच्चे काफ़ी एक्साइटेड हैं। अच्छा, समोसे खरीदे हैं? अगर पट्टी खरीदी है, घर जाके मामों को तंग करेंगे, समोसा बनाओ। ये चिप्स की फाइन है, चिप्स खाती है फिंगर, और पैसा ऐसे ही है। बस बच्चे बहुत खुश हैं। बिल्कुल, आपने जो है वो रोज़ादारों की गुफ्तगू सुनी। उनका कहना है कि समोसे, कचौरियाँ और पकोड़े हर शख्स की जो है वो पसंदीदा ग़िज़ा है और अफ्तार दस्तरखान पर अगर समोसे और पकोड़े ना हों तो दस्तरखान को जो है वो खाली खाली महसूस होता है। यही वजह है कि अब जो है वो काफ़ी टाइम है अभी अफ्तारी में, मगर इसके बावजूद जो है वो शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो समोसे, पकोड़े और कचौरियाँ खरीदने में जो है वो मसरूफ़ दिखाई देती हैं। इफ्तारी की तैयारियां जारी हैं। ठीक है फ़हद, बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।